Morning, ma'am. Hi, good morning. Very good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. So we are all set for Priya's affirmations. First 5 minutes. Today is a Sunday, so we can stretch time by about 5 minutes. So before Priyanka and Shamji read for us. Yes, Priya, we are all ready. Okay, ma'am. I love myself. All my relationships are purposeful. I'm a genius. The universe lives in my favor. I'm born to win. My mind is full of inner peace, freedom, and joy. I choose happiness today. I choose love and goodwill. I sleep in peace and wake in joy. I am capable and I am strong. I am free from every fear. I am polite and respectful. I am patient. Everything, everything is good and it's right here. I am loyal. I am at peace with myself. Prosperity surrounds me. Prosperity flows towards me and through me. I am special. I am worthy. Everything that I need comes to me at the right moment. All my assets are constantly multiplying. I am ready for all the challenges. I'm always ready to come out of my comfort zone. I choose freedom of will and finances. I'm constantly generating brilliant ideas. I am calm and relaxed in every circumstance.
I always make good decisions. I'm rising above every obstacle. I focus on the good in any given situation. Thank you, ma'am. 5 minutes are done. Thank you, Priya. Thank you, ma'am. Thank you, Priya. Thank you, ma'am. Thank you so much, Priya. Thank you. I to get carried away when you are doing the affirmation. I sit with my eyes closed. I thought that 5 minutes has got a significance now. That's why I thought, okay, 5 minutes. Okay, otherwise we could all carry forward. We can, yeah. Actually, again, today's chapter is like quite long. Magic Dust Everyone. That's also quite long. Some chapters are very, very long, you know. So that's the reason we kind of condense the time. But abhi jaise magical air वगैरह आएगा, so they are quite short. Then we can do it for 10 minutes also. Yes, ma'am, sure. Yeah. Thank you so much. Thank you, Priya. Thank you, ma'am. It was indeed wonderful. Yes, so today's chapter is about magic dust, everyone. So now we have started thinking about others because our existence is so easy because of all the other people who are around us, isn't it? मतलब इतने सारे लोग हैं, हम आराम से सोते हैं और there are people जो transporters होते हैं, there are people जो cab drivers होते हैं. जब रात में flight land करती है तो पता लगता है कि पूरे मतलब यहाँ दिल्ली में जैसे टर्मिनल 3 का अलग से एक पार्किंग है, वहां पे एक तिनका भी रखने की जगह नहीं होती है. There are so many cab drivers who are at work at 2 o'clock in the night, 3, 4, 5 when I have a flight in the morning. It is so easy. Similarly, हमारे घर पे हमारे जो गार्ड्स होते हैं, so if you live in society apartments या अगर आप individual colonies में रहते हो, वहां पे वो अपना डंडा मार मार के अभी भी बोलते हैं जागते रहो, ठीक है. देयर आर पीपल जो कुरियर वाले हैं जो हमारे घर पूरे दिन हमारे यहाँ मतलब आई एम श्योर ऑल ऑफ अस यू नो लाइक वी कीप ऑर्डरिंग थिंग्स ऑनलाइन, कुछ ना कुछ आता रहता है. बिग बास्केट वाले लोग आके घर पे सब्जियां ग्रोसरीज दे के जाते हैं. हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स आते हैं, दे डू ऑल दैट, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना ये वो, कपड़े धोना कपड़े सुखाना कपड़े उतारना, you know, dusting, everything is taken care of literally. There's so many people. Swiggy and Zomato, I mean, you always see them on the road. बारिश हो कुछ हो वो बेचारे अपने 2 व्हीलर्स पे होते हैं. मैं इतना ज्यादा उनको ब्लेस करती हूँ, you know, like for whatever, like it is so hot, sometimes it's so rainy, but they are always on their toes. मतलब कितनी आसान हमारी जिंदगी है, isn't it? घर बैठे आपके घर में आपको रॉ वेजिटेबल्स मंगवानी है, आपके घर में दाल खत्म हो गई है, आपके घर में ब्रेड खत्म हो गया, एग्स खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज जस्ट अ फोन कॉल अवे. एक फोन करो सब घर में हाजिर हो जाता है. सो हमारा एग्जिस्टेंस, हम ऑफिस जाते हैं, आई मीन द मोमेंट आई लैंड इन ऑफिस देयर इज ऑलवेज समबडी टू ओपन द गेट ऑफ यू नो सो दैट मेरी गाड़ी अंदर पार्क हो पाए. एंड देन आफ्टर दैट यू नो लाइक बिल्कुल वहां जाने के पहले पानी और ग्लास टेबल पे रखा हुआ होता है, अ फ्रेश ग्लास एंड अ फ्रेश बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ओके, उसके आधे घंटे के बाद गरम गरम चाय या कॉफी आती है, वट एवर आई वॉन्ट टू हैव, यू नो लाइक वो पूछते हैं आके कि आप आज क्या पीना है. तो समटाइम्स इट्स टी, समटाइम्स इट्स कॉफी. सो लाइफ इज so easy because of so many people who are working for us. आज का दिन डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए, people who serve us in whichever way, whatever way, और हमारी जिंदगी को इतना आसान करते हैं. एंड दे आर सो इम्पोर्टेंट कि एक दिन अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्पर नहीं आती हैं या आपके कुक नहीं होते हैं घर में, तो उस दिन शायद बाहर से खाना आता है, या हम बनाते हैं बट हमको सुबह से रहता है कि ओ सो एंड सो पर्सन इज नॉट कमिंग टुडे, इज ऑन लीव. यू नो, इतनी ज्यादा अहमियत है उनकी. सो आज बहुत भर के आज ब्लेस करने का दिन है. आज इतनी ब्लेसिंग दो कि एक दिन में हमारा कर्मा जो है ना, जो हमने शायद कभी पहले बिना मालूम किए ऐसे कभी कभी हो जाता है हमसे गलतियां, वो की होंगी, वो सारा इरेज हो जाएगा. रॉन्डा बर्न ने कुछ चैप्टर्स में बोला है दैट you know in one day you can do so much gratitude that life will never be the same again. So even one day makes so much of a difference. So आज का दिन है, संडे है,
खूब भर के जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हम सर्विस इंडस्ट्री के लोगों के लिए कर सकते हैं या जिन्होंने हमारी कभी मदद की, उतना हम करने में इसको वक्त बिताएंगे। और ब्लेस क्या, ये वाली प्रैक्टिस तो मन में करने की है। ऐसा तो है नहीं कि आप सपोज आज बाहर मॉल गए हो या आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, शॉपिंग करने के लिए गए हो, किसी के घर गए हो, आप बाहर हो, ड्राइव पे गए हो, बिकॉज छुट्टी है, सबके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बाहर भी गए हो, तो ये प्रैक्टिस किताब कॉपी पेंसिल उठाने की है ही नहीं आज की। आज की प्रैक्टिस है मन से दुआएं दो, मन से ब्लेस करो, और मन में जो दिख रहा है, आप जानते हो उसको, नहीं जानते हो, अगर कोई स्विगी जोमेटो वाला भी दिखता है उसको खूब ब्लेस करो कि उनके पास खूब बरकत आए, खूब पैसा आए, बहुत खुशियां आए, उनके सारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, उनके माँ बाप बहुत अच्छा, दे फ्लरिश एंड प्रॉस्पर एंड एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ। जो आपके दिल से निकलता है जितना ज्यादा, आज वो वाला दिन है। मैजिक डस्ट एवरीवन, ओके, दैट्स व्हाट द चैप्टर्स नेम इज, मैजिक डस्ट इज ब्लेसिंग्स, एज इफ कि आपके दुआएं से एक गोल्डन शावर्स उनकी जिंदगी में जा रहे हैं। सो दैट्स हाउ। और जो चीज आपकी जिस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ से निकल रही है, आपके मन से निकल रही है, वो बहुत मल्टीप्लाई होके घूम के आपके पास वापस आती है, और आप देखना कि उसके बाद लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। इतनी पावरफुल वाली प्रैक्टिस है ब्लेसिंग देने की। सो इसमें जो इमेज है उसमें देखो रैंडम लोग हैं, इसीलिए उनकी पीठ है सामने, चेहरा नहीं है, क्योंकि चेहरा जहां जहां पे भी सामने है वहां पे नोन लोग हैं अपने, है ना। सो ये पीठ है सबकी, और सब अपने अपने काम करने जा रहे हैं। अलग अलग तरह के बैग्स हैं, कई लोगों के पास प्लम्बिंग बैग्स हो सकते हैं, कई लोगों के पास इलेक्ट्रिशियन का बैग हो सकता है, कई लोगों के पास कंप्यूटर फिक्स करने का काम हो सकता है। जिस भी तरह के बैग है, बहुत सारे लोग हैं। हमको इस तरह से हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमारी जिंदगी को बहुत आसान करते हैं। लंबा चैप्टर है, हम पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर अपनी कोई भी प्रेयर आंसर करनी है ना, सबसे अच्छा तरीका है दैट आप लोगों को ब्लेस करना शुरू कर दो। आप देखना कि आपके रास्ते कैसे क्लियर होते हैं उसकी वजह से, एंड इट्स दैट इजी। हाँ जी प्रियंका, प्लीज रीड। Day 10, Magic Dust Everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. St. Ambrose, AD 340 till 397, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improve your life. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains, and in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity,
gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a sidewalk or across a polished floor. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who check your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drink and food or removing your plate or trash is a service. The airplane thank you for flying with them. The captain thank you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with a thank you. All of them are doing you a service, and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or a son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or does not give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended. Or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Phil of Alexandria, circa 20 BC to AD 50 philosopher. So Priyanka, we'll just take a little break या नहीं तो वो कुछ important points miss हो जाएंगे, इतना लंबा chapter है वाला. So इसमें शुरू में हमको बताया है कि no duty is bigger than giving thanks. मतलब आपका फर्ज है, no duty is bigger than giving thanks in return.
That's how we started this chapter. Okay, very very important. और वो वाला थैंक यू नहीं जैसे हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, हमारे थैंक यू के साथ एडिशनल चीजें होनी चाहिए. मतलब इट इज नॉट एम्प्टी थैंक यू, बस आपने बोल दिया थैंक यू. ठीक है, अगर किसी ने कुछ किया भी है, देखो सबको सामने से तो नहीं बोल सकते ना. जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले वो वाले गार्ड्स होंगे जो आपका टिकट और आपका बोर्डिंग पास और आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट चेक करते हैं. उसके बाद देन यू गो इनसाइड, तो वहां पे खूब सारे सिक्योरिटी चेक इन होते हैं. आजकल बोर्डिंग पास आप अपने हाथ से निकाल सकते हो मशीन से. वहां पे भी कोई ना कोई एयरलाइन का पर्सनल खड़ा होता है सर्विस करने के लिए. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी पुलिसमैन होते हैं जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं. So many of them are there at the airport and at the other airports also. बाहर भी कंट्रीज में जाते हैं तो अलग अलग इतने सारे लोग असिस्टेंस के लिए खड़े हुए होते हैं. They are directing us that you can go in that direction or you can do this. अपना मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक आप निकाल के बास्केट में रख दो. कभी कभी वो बास्केट ला के देते हैं. तो हर एक को जो बैठा हुआ है काम करने के लिए, मतलब जो सिक्योरिटी चेक पर्सन हमारा जो सामान को एक्सरे कर रहा है, उसको तो हम डायरेक्टली थैंक यू नहीं बोल सकते ना, किसी और सीट पे बैठा हुआ है. But then we can send that magic dust to that person. उसके ऊपर खूब सारी dust sprinkle कर दो thank you की, that he is doing it, and dust with lot of blessings, that for his happiness, for his excellent health of him and his family and all his loved ones. और फिर उसके बाद इस तरह जितने भी लोग एयरपोर्ट पे, आप सोचो कि पूरा एयरपोर्ट को आपने गोल्डन डस्ट से कवर कर दिया है, of protection and safety and gratitude, है ना. इस तरह हर जगह जहां पे भी हम होते हैं, आई मीन यू जस्ट कुड बी ऑन द रोड एंड देयर आर ट्रैफिक कॉप्स वहां खड़े होते हैं. इट कुड बी पीपल जो सड़क साफ कर रहे होते हैं. हम सुबह सो के उठते हैं, उसके पहले सड़कें सारी साफ हो जाती हैं हमारे शहरों की, हमको पता भी नहीं होता है. मुझे पहले लगता था कि पता नहीं है कोई आते भी हैं कि नहीं आते हैं. फिर उसके बाद जब कोविड डिक्लेयर हुआ था और बीच में जितने भी वो म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी थे, उनकी स्ट्राइक थी यहाँ पे दिल्ली में 2-3 दिनों के लिए. एंड उस वक्त हम इतना बाहर तो निकलते नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत बस ग्रोसरी लेने के लिए जाते थे घर से बाहर. तब मुझे पता लगा 3 दिन उन लोगों की स्ट्राइक थी. इतना बुरा हाल हो गया था कि लिटरली द होल मतलब हाउस तक वो स्मेल आ रही थी गंदी सी कुछ बाहर से कूड़े की, कि वो फर्मेंट हो रहा था वहां पे रखा. फिर पता लगा कि मतलब ये लोग कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं. मतलब पता भी नहीं लगता, हमें लगता है कि रोड कोई सफाई होती भी है कि नहीं होती है और पता नहीं कैसे. But I mean, it's so much of diligence. I mean, like 4 o'clock, they all wake up and before people come on the road, it's already clean, right? सारे जो public dustbins होते हैं, वो सारे मतलब there are people जो हमारे घर से trash लेके जाते हैं, है ना? और फिर वो उसको जहां पे भी डालते हैं, फिर वहां से उठा के वो एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहां पे सबके घर का ट्रैश आता है. वहां से वो किस तरह से रिसाइकल होता है, कोई म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आता है वो लेके जाता है. आई थिंक हमको बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए. सोचो अगर हमारे घर से डस्टबिन ही नहीं खाली हो, इतने सारे डस्टबिन हर कमरे में होते हैं. आई इन माय हाउस इज सो मेनी डस्टबिन एवरीवेयर, इन एवरी कॉर्नर यू विल सी वन ट्रैश बिन. ठीक है, इमेजिन कोई लेके ही नहीं जाए और वो रखे हुए हैं, या फिर आपको पता नहीं कितनी दूर ले जाना पड़ेगा उसको डिस्पोज ऑफ करने. आई मीन लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल हु आर देयर. स्टोर में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, there are always, you go to say a Mac store to buy some makeup or a lipstick, there are so many people जो आपके असिस्टेंस के लिए इधर उधर से आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, and they will also show you like this is how this lipstick will look and they will put it for you. अगर कोई आपको blush on चाहिए तो वो लगा के दिखाते हैं. So I think they deserve and they owe, I mean we owe them big time, thank you for all of that. We go to any clothing store, वहां से इतनी सारी, suppose आप साड़ी खरीदने गए हो, the person will show you so many sarees, कि आप ये ले लो, आप वो ट्राई करो, अच्छा आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको ये चाहिए. they don't need to do that, like ठीक है, सबका फर्ज होता है, सबका काम होता है, but then इतनी डिलीजेंस से कोई हमारे लिए काम करता है. सो इसलिए बहुत ज्यादा मैजिक डस्ट हमको सुबह से रात तक, क्योंकि हमारी जिंदगी पूरी तरह से डिपेंडेंट है लोगों पे. इवन जो फ्रूट सेलर्स होते हैं सड़क पे, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, जो चिकन मीट एग्स जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले होते हैं. So today we just have to do that, because there is actually no duty than giving thanks to people. And इसमें जो ऊपर था that whatever you are giving thanks for, it will return to you 100-fold. वो 100 गुना multiply होके वो जो wishes और blessings आप लोगों को दे रहे हो वो वापस आती है. तो इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि आप रेस्टोरेंट में गए हो और जो वेटर हैं आपको पानी ला के देते हैं, फिर आपको खाना पूछते हैं,
फिर वापस आके आपकी टेबल भी क्लीन करते हैं। अगर आपको कोई और भी असिस्टेंस चाहिए होती है, लाइक यू नीड एक्स्ट्रा पैक ऑफ टिश्यू पेपर्स, दे विल कम एंड गिव यू दैट, यू नो। सो मल्टीपल पीपल, हमारी जिंदगी पूरी तरह से डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। और प्लस इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है दैट किसी का बिहेवियर हमारे साथ बहुत रूड होता है। सपोज आप किसी ऑफिस गए अपना काम कराने के लिए और उनका बिहेवियर बहुत रूड है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि योर ग्रैटिट्यूड शुड नॉट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे के बिहेवियर पे आपका ग्रैटिट्यूड डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको गुस्सा आना ही नहीं है ना। सो वो क्या बोला था प्रिया ने, दैट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस आई एम काम एंड रिलैक्स्ड, है ना। रिमेंबर दैट एफर्मेशन, एफर्मेशन सिर्फ करना नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है हमको। सो आई एम काम, यू हैव टू बी काम एंड रिलैक्स्ड इवन व्हेन समबडी इज नॉट टॉकिंग टू यू प्रॉपर्ली, या फिर कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, और आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है दैट यू डोंट नो कि सामने वाला जो इस तरह से बिहेव कर रहा है वो क्या हार्ड बैटल फाइट कर रहा है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हुई हो सकता है उसका बच्चा बहुत बीमार हो और वो ऑफिस में आना पड़ा उसको, हो सकता है उसका जस्ट ब्रेकअप हुआ हो सकता है उसकी शादी ब्रेक हुआ है, कुछ भी हो सकता है कि घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है बट वो इतने दिन की छुट्टी नहीं ले पा रही थी तो उसको ऑफिस आना पड़ा। तो ऐसे में दिल से अंदर से खुशी नहीं निकलती है, तो हमको लगेगा कि वो पर्सन रूड है, बट हमको पता नहीं है ना व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। इसीलिए हमको कोई हक नहीं बनता कि हम किसी पे गुस्सा करें, यू नो, लाइक इस तरह से अगर कोई हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहा हमारे मुताबिक। सो इसलिए स्टिल गिव ग्रैटिट्यूड irrespective of, you know, however whichever way they are behaving with you. So this is also very very important सीख जो हमको मिली है। एंड अगेन आई रिपीट, मैं बार बार कहती हूँ, जो कॉल सेंटर से फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन चाहिए क्या, आपको अपनी गाड़ी बेचनी है क्या, आपको वहां पे कुछ हॉलिडे पैकेज मिल रहा है, आपको ये हो रहा है, आपको बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, आपको कार लोन चाहिए क्या, नेवर एवर बी रूड टू देम एवर, ओके। ऑलवेज ब्लेस देम विद अ लॉट ऑफ, यू नो, लाइक वो किसी मजबूरी में ही ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको 50 लोग गाली देते होंगे एक दिन में। आई हैव सीन पीपल हाउ दे येल एट क्रेडिट कार्ड पीपल, यू नो, जो फोन करके बोलते हैं कि आपको मैम क्रेडिट कार्ड बनवाना है, या आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, आपको चाहिए क्या, या फिर आपको गाड़ी बेचनी है क्या, हमारा कार सेलिंग का काम है, आपको कोई हॉलिडे पैकेज चाहिए क्या। ऐसे पूरे दिन फोन आते रहते हैं, मैंने देखा है लोग कैसे बात करते हैं उनसे। तो इसमें रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है कि देखो वो भी किसी के बच्चे हैं, ठीक है, किसी माँ बाप के बच्चे हैं, और पैसा कमाने के लिए ही वो वहां पे काम कर रहे हैं। So this is, I mean, like, and imagine the way we treat them. Literally, like, it's really, कोई उनका confidence, इज्जत हम सब खत्म कर देंगे अगर इस तरह से हम भी अगर कंटिन्यू करते रहे उनसे बात करना इस तरह से। So realize that, in fact, always tell them then, oh, sorry, I don't need a loan, but always bless them with a lot of, you know, prosperity in their life. You know, कोई नहीं चाहता वो लोग 10-15 हजार की नौकरी करते हैं एंड मतलब 6 days काम करते हैं उनका, और सैटरडे संडे उनका हमेशा वर्किंग होता है, बिकॉज तब हम लोग फ्री होते हैं ना, हमारी छुट्टी होती है जब सैटरडे संडे, तो हम अवेलेबल होते हैं। तो जितने प्रॉपर्टी डीलर्स, क्रेडिट कार्ड वालों के फोन सबके वीकेंड्स पे आते हैं, जब सारी दुनिया, यू नो, रिलैक्स कर रही होती है, हम लोग फैंसी लाउंजेस में जाके खाना वाना खा रहे होते हैं, तब वो लोग काम कर रहे होते हैं, उनका वर्किंग टाइम होता है, और वो लोग कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, दे ऑल कम टू ऑफिस, you know, on a weekend or on all the other days, and at the end of the month they're getting only 15,000 rupees, you know. So do you think that we need to be rude to them? Never be rude to those people. हम अपना कर्मा इतना big time खराब कर लेंगे ना अगर हम इस तरह से करेंगे। तो हमको कोई भी कॉल सेंटर से किसी भी तरह का फोन आता है, किसी भी बच्चे का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सारे, है ना, किसी भी तरह का, तो जस्ट, यू नो, ब्लेस देम कि उनके जो भी टारगेट है अचीवमेंट, अगर उनके डेज एंड मंथ्स एंड वीकली टारगेट सारे अचीव हो जाए और उनको खूब प्रॉस्पेरिटी मिले, यू नो, ये वाली ब्लेसिंग देनी है। इमेजिन वो 20-20 साल की उनको नौकरी करनी पड़ रही है ना। आई मीन, लाइक, कौन चाहता है कि 12,000 की नौकरी करे इतना, मतलब with that kind of a this thing that you're not even getting pleasantness from people, है ना। तो ऐसे किसी सबसे उल्टा पुल्टा people back phone on them. I mean, like, they don't even say bye to them. We don't say bye to them most of the time. I mean,
I do, for sure. I always talk very, very nicely and I say, thank you so much for calling me, but I don't need your loan. But then I always bless them कि उनका दिन का weekly, monthly सारे targets पूरे हो जाएं and they get a lot of prosperity. And that is how our conduct has to be. So we'll continue reading. So it says, be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. हमको पता नहीं है कि अगले की जिंदगी में क्या चल रहा है. कई बार ये होता है कि like, wow, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी वो है, but everybody is fighting a hard battle. हाँ, वो लोग बोलते नहीं है, कई लोग बोलते नहीं है, तो सामने से यही लगता है ना, कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, but you don't know that कितनी मेहनत करके वो इंसान वहां तक पहुंचा है ना, उसके पीछे का एफर्ट नहीं पता होता कभी किसी को. So I always, when everybody says that your life is beautiful, I said, yeah, my life is very beautiful, but you try and live one day of my life. I mean, you live it, then you will come to know that there's a lot of मेहनत behind it. It is not that सब कुछ इतना आसान है. मतलब बहुत कभी कभी कंट्रोल है, कभी विल पावर होता है, कभी मेरा भी मन करता है कि मैं लेट सो के उठूं कि आज संडे है. So we see our attendance today is 50% than what it every day is. But then I don't have a choice and I love doing what I have to do. So this become my way of life. And among so many other things at work also, if I receive a lot of love from our students and teachers and all the faculties and fraternity from other universities, because I work for UGC also. So बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, but ऐसे ही थोड़ी है, मतलब कोई भी ऐसे नहीं होता है कि God gift हो. Everybody's worked very hard to achieve it. So there has been hours and hours that I have woken up into the night to study different books and, like अपने subject की, मैं अपने काम की बात कर रही हूँ. So yeah, I mean, like as I write the best books, I know that in nutrition and dietetics, और मेरे से अच्छा किताबें, बहुत कम लोग हैं जो मैंने देखा है कि उस तरह से लिख पाते हैं. But then इतने सालों की मतलब मेहनत, बहुत मतलब I can't even begin to tell you that the hard work that goes behind it. So it's not that anybody's life looks very flashy and nice and all. They work brick by brick, to make that wherever they are. Like all of you are making, I mean, waking up early and all of you are there. आपको भी तो सोने का मन कर ही रहा होगा ना, लेकिन फिर भी उठ के, जैसे प्रिया ने affirmations कराए, बहुत आराम से मैं पूनम को अपना co-host बना देती हूँ कि she handles the whole show. All of you are reading Priyanka, Shyamji. So I'm sure that आप लोग का भी तो मन करता होगा ना कभी लेट तक सोने के लिए, but वो commitment और वो sincerity है ना, ये आपको पे करेगी, और ये ऐसे पे करेगी उस वक्त में जब आपको, when you really need it, it will come to you as the biggest blessing in your life. And that's how life is like. So be kind to everyone. Hanji, Priyanka. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air or say thank you as you are looking down, or thank you you are while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly
An unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Every action always has an equal reaction if you really mean it. When you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. Indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who walk in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank you at least thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It does not matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. Whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust magic dust on them all. If you imagine the sprinkling dust falling over people, when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson,
who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the services they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Number 4, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yeah, thank you so much, Priyanka. Thank you. Long chapter. Thank you for the beautiful reading. So इसमें अब वो आगे का पार्ट तो हमने कर ही लिया है. उसके बाद यही लिखा हुआ है दैट ये वाली मैजिक डस्ट की जो प्रैक्टिस होती है ये बहुत ही क्रिएटिव प्रैक्टिस है. ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री के लिए लोगों को करो जो सर्व करे, उनके लिए तो हमको करना ही करना है, वो तो हमारी ड्यूटी है. लेकिन जैसे आप सड़क पे जा रहे हो और कोई मतलब बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है और वो इतना रैश चला रहा है कि उसको आपको मैजिक डस्ट ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन देने की जरूरत है. आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन आपको ये पता है कि इसको सेफ्टी और प्रोटेक्शन की जरूरत है. नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने मन से क्या निकालते हैं जब भी कोई कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे करेगा क्या, ध्यान ही नहीं होता. आजकल के जवानों के हाथ में बाइक दे दो तो ऐसे करते हैं, या हमारे मुंह से कोई गलत बात उनके लिए निकलती है. इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम मैजिक डस्ट और प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो किसी का बच्चा ही है ना जो बाइक लेके निकला है, और हो सकता है दूसरी तीसरी बार हाथ में बाइक आई हो तो उसको लग रहा है बस फुल ऑन स्पीड पे चलाओ. तो इस तरह से फ्लाइट में बहुत यूज करती हूँ. जब छोटे छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं वो रो रहे होते हैं क्योंकि वो प्लेन इतना मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है ना उसका पूरा एरिया, तो बच्चे बहुत मतलब उनको ऐसे लगता है फंस गए हैं वो किसी जगह पे, और जितनी देर फ्लाइट हवा में होती है तब तक वो बच्चे रो रहे होते हैं. सो आई डू अ लॉट ऑफ मैजिक डस्ट ऑन दोज चिल्ड्रन एंड द मदर्स, क्योंकि वो मदर्स भी परेशान हो रही, जब बच्चा रोता है तो मदर बहुत ही परेशान रहती है. तो आई डू अ लॉट ऑन देम एंड लिटरली बिलीव यू मी, मतलब within 2 to 3 minutes of doing magic dust of calm and relax, and the child should have a beautiful sleep and the mother should be relaxed also and happy. ये मैजिक डस्ट करो और 2 मिनट में वो बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर वो आवाज आनी बंद हो जाती है ना. तो इस तरह भी हम इसको मैजिक डस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. सो आज की प्रैक्टिस जो है इसमें सुबह सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, जो आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनको रीड करना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. दूसरा ये है कि आज 10 लोगों को हमको देखना है पूरे दिन भर में, सुबह से अभी तक रात तक, जो हमारी लाइफ को बहुत आसान करते हैं. 2-3 तो आपके घर में ही निकल जाएंगे, आपके कार क्लीनर्स, आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स, आपके गार्ड जो आपकी बिल्डिंग या आपकी सोसाइटी गेट पे जनरली आपको विश करते हैं सुबह शाम, ड्राइवर्स अगर हैं तो उनके लिए, एंड इट कुड बी पीपल जो ट्रैश बिन आपके लेने आते हैं, ट्रैश कलेक्टर्स. सो इस तरह से मतलब कुछ तो बिल्कुल ही टिप्स पे होंगे जिनसे आप ग्रोसरीज लेते हो बहुत ऑफन, तो उन लोगों का. सो इस तरह जो आपने अभी अमेजोन आजियो से प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, अगर उनको वो देने आया है तो ऐसे लोगों को या तो सामने उनको देख के अगर वो सामने है तो, या फिर आपको मन में ही उनको आईज क्लोज करके उनको इमेजिन करके मैजिक डस्ट उनके ऊपर डालना है. ये आज की प्रैक्टिस है.
ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने आज ही आपके लिए काम किया हो सकता है कि आप ऑफन उनको देखते रहते हैं, जो गार्ड्स हैं या जो भी हैं। हो सकता है कि अगर आप सोसाइटी अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहां पे देयर इज सम एडमिन पर्सन जिससे आप बात करते रहते हो ऑन एंड ऑफ, तो आप उनको कर सकते हो। आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका प्लम्बर, आपके आपके जो एसी का भी ठीक करने वाले अभी रिसेंटली अगर आए हो, फिट करने वाले आए हो, आपके फैन फिक्स करने वाले लोग आए हो, ठीक है, कोई कारपेंटर आया हो आपके घर में, किसी भी कोई भी लोगों के लिए आज 10 लोग टोटल नंबर करना है आपको, या तो सामने बोलना है या मन में करना है, जरूरी नहीं है कि सामने ही बोलना है, ठीक है, मन में भी कर सकते हैं और अच्छे से जैसे बताया हुआ है ना वैसे ही लिखना है। और औंडा बन ने तो बल्कि ये भी बोला है कि अगर आप घर में हो तो आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल या कंप्यूटर निकालो और उसमें लिखो उन 10 लोगों के लिए भी जो पास्ट में जिनकी सर्विस से आपने बेनिफिट किया है और हु हैव गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। सो नाउ इट इज 10 जो इमेजिन करके या सामने बोलनी है, प्लस 10 जो ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखनी है। और वो सारी ये भी लिखा हुआ है दैट वो वॉट एवर एनर्जी और गिविंग जो ग्रैटिट्यूड आप लोगों को दे रहे हो वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा और आपकी जिंदगी को रोशन कर देगा। ये भी लिखा हुआ है कि वो 100 गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा, है। सो विन विन सिचुएशन है ना, इजंट इट? सो बस, और ये लिखा हुआ है कल की प्रैक्टिस हम आज ही पढ़ लें तो कल मैजिक मॉर्निंग का डे है जहां पे हम मॉर्निंग में सुबह से जब आंख खुलेगी तो बेड में ही है अभी, ठीक है, तो मॉर्निंग दैट वी हैव लाइफ वी कुड वेक अप, उसके लिए थैंक यू। पंखा चल रहा है अगर आपके सामने ऊपर, उसके लिए थैंक यू। जिस बेड पे आप सो रहे हो उसके लिए थैंक यू। जिस पिलो पे आपने सिर रखा हुआ है उसके लिए थैंक यू। जो शीट आपने ओढ़ी हुई है उसके लिए थैंक यू। मैट्रेस के लिए थैंक यू। लाइट के लिए थैंक यू। एसी के लिए थैंक यू। एसी के रिमोट के लिए थैंक यू। रूम के लिए थैंक यू। उसकी खिड़की दरवाजों के लिए थैंक यू। उससे जो अटैच बाथरूम है उसके लिए थैंक यू। फिर आप नीचे जैसे पैर रखोगे तो एक पैर से थैंक, दूसरे पैर से यू। चप्पल अगर आपने पहनी हुई है अपनी चप्पलों को बहुत सारा थैंक यू। फिर वो पहन के आप वॉशरूम गए हो, मे बी यू यूज द फ्लश, वॉश बेसिन, वट एवर, उन सबको बहुत सारा थैंक यू। फिर टूथब्रश किया है, टूथब्रश को थैंक यू, टूथपेस्ट को थैंक यू, टंग क्लीनर को थैंक यू, वॉश बेसिन को थैंक यू, उसमें से आने वाले पानी को थैंक यू, फॉसेट को थैंक यू। कल वो वाला डे, कल मैजिक मॉर्निंग है। तो जब तक हम 9-10 बजे तक पूरी तरह से तैयार होके नहा धो के तैयार नहीं हो जाते तब तक हमको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में रहना है। इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड डे फॉर मैजिक मॉर्निंग। हम रात को कोई ना कोई याद दिला देगा और सुबह भी एक बार याद दिला देंगे ग्रुप में दैट आज मैजिक मॉर्निंग डे। वेस्ट मत करना उस दिन को, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। सो नाउ वी गो टू द अदर बुक विच इज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और आज हम पढ़ रहे हैं जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं बहुत ज्यादा या किसी भी तरह की उनको एडिक्शन है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, तो वो किस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं, उसका 3 स्टेप प्रोसेस भी है। और पहले कॉज ऑफ अल्कोहलिज्म, कल से ही हमने पढ़ना शुरू किया था कि किस तरह अल्कोहलिज्म, और इस अगर ये कंटिन्यू रहता है ना तो कभी भी लाइफ में ग्रोथ नहीं आती है। कोई भी एडिक्शन अगर बहुत ज्यादा रहता है तो बहुत इम्पेडिमेंट्स आते हैं, बिकॉज अल्कोहल एक कोपिंग मैकेनिज्म है और उसके बाद ये हैबिट बन जाता है। हैबिट बन जाता है तो ये दिमाग ले लेता है, बिकॉज ये न्यूरॉन्स पे, ब्रेन पे असर करता है। एंड देन उस पर्सन को लेजीनेस आ जाती है, वो चाहता नहीं है कि कुछ प्रोडक्टिव करना, और अगर वो करता भी है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। प्लस उसके रिश्ते सारे खराब हो जाते हैं, बिकॉज बहुत कलेश होती है इसकी वजह से घर में, है ना, बिकॉज नो वन हैज टाइम। व्हाई शुड अदर पीपल फेस द बर्डन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, राइट? क्यों क्यों एक जना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सो अल्कोहल अगर है तो खुशी नहीं हो सकती है, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। इसलिए आज हम कॉज ऑफ अल्कोहलिज्म पढ़ेंगे और फिर 3 मैजिक स्टेप्स पढ़ेंगे। कितना द मैजिक वर्ड यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, या हाँ जी श्याम जी प्लीज। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। I'll start. Cause of alcoholism. The real cause of alcoholism is negative and destructive thinking. For as a man thinketh, so is he. The alcoholic has a deep sense of inferiority, inadequacy, defeat, and frustration, usually accompanied by a deep inner hostility. He has countless alibis as to his reason for drinking, but the sole reason is in his thought life. Yeah, so cause of alcoholism is always
that I am defeated in life. Simple. कहते हैं ना कि सिर्फ नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थिंकर्स अल्कोहल पीते हैं, मतलब एडिक्शन के लिए। एक अल्कोहल होता है यू एंजॉयिंग योर ड्रिंक्स, इट्स नॉट अ कोपिंग मैकेनिज्म जस्ट टू फील गुड, उसमें आपको अल्कोहल कभी नुकसान नहीं देगी। बट कोपिंग मैकेनिज्म, छुप छुप के पीना, बहुत ज्यादा पीना, सुबह से रात तक पीना, इस तरह का जब होता है दैट यू डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, यू नो दैट डिपेंडेंसी अगर है, इट इज डिस्ट्रक्टिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। और बाइबल में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि जो आपका दिमाग होता है ना, आपको आउटवर्ड जिंदगी वैसी दिखेगी, तो आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय और नेगेटिव होता जाएगा अगर अल्कोहल पीना। सो इट इज एक्चुअली अ साइन दैट इनफीरियोरिटी, इनएडिक्वेसी, डिफीट एंड फ्रस्ट्रेशन का साइन होता है ये। तो जितना ज्यादा आप और ज्यादा अल्कोहल पे रिलाय करोगे, उतनी ही ज्यादा जिंदगी में और ज्यादा ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे इनफीरियोरिटी, इनएडिक्वेसी, डिफीट और फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। इसलिए व्हाई नॉट रिवर्स इट, जिसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। हाँ जी। 3 magic steps. The first step, get still, quiet the wheels of the mind, enter into a sleepy, drowsy state. In this relaxed, peaceful, receptive state, you are preparing for the next step. The second step, take a brief phrase which can readily be graven on the memory and repeat it over and over as a lullaby. Use the phrase, sobriety and peace of mind are mine now, and I give thanks. To prevent the mind from wandering, repeat it aloud or sketch its pronunciation with the lips and tongue as you say it mentally. This helps its entry into the subconscious mind. Do this for 5 minutes or more. You will find a deep emotional response. The third step, just before going to sleep, practice what John von Goethe, German author, used to do. Imagine a friend, a loved one, in front of you. Your eyes are closed. You are relaxed and at peace. The loved one or friend is subjectively present and is saying to you, congratulations. You see the smile. You hear the voice. You mentally touch the hand. It is all real and vivid. The word congratulations imply complete freedom. Hear it over and over again until you get the subconscious reaction which satisfies. Yeah, so such a beautiful and simple way alcoholism या कुछ भी छोड़ने के लिए, है ना। सो इसमें 3 मैजिक स्टेप्स हैं। पहला वाला है कि आप बिल्कुल मतलब बैठ के डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करो, मतलब लंबी गहरी सांसें लो और छोड़ो एक जगह स्टिल बैठ के, और उसके बाद एक मतलब ललबाई की तरह ये वाली बस एक ही लाइन है। बाकी आप देखो कि कितने बड़े बड़े एफर्मेशंस हैं बाकी सबके लिए। जो हमने फॉरगिवनेस का किया था कितना लंबा है, क्योंकि मैं रोज करती हूँ सुबह शाम, तो मतलब वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अभी भी। पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बिना उसको देखे बोल पाऊँ, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ वर्ड सेंटेंस इधर उधर हो जाते हैं, जबकि इतने दिन से कितने 5-6 दिन हो गए उसको करते करते। सो ये वाला जो है, दिस इज जस्ट 1 लाइन। सोब्राइटी मतलब सोबर रहना, एंड पीस ऑफ माइंड आई आर माइंड नाउ एंड आई गिव थैंक्स। ठीक है, तो हर चीज प्लग इन थैंक यू से, ग्रेटिट्यूड से किया जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सारे अफर्मेशन में एंड में एंड थैंक यू फॉर इट, ठीक है। सो वो हमेशा वैसे होता है। सो सिंपल सी लाइन है, बहुत आसान लाइन है। सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड आर माइंड नाउ एंड आई गिव थैंक्स, ठीक है। और बार बार, और इसको उन्होंने बोला है कि जोर से बोलना है ताकि आपका दिमाग ज्यादा इधर उधर ना जाए। लेकिन अगर फिर भी दिमाग इधर उधर अगर जाता है, तो आपको अपने लिप्स और टंग को यूज करके, जैसे विस्पर करते हैं ना हम लोग, मतलब मन में भी बोल रहे हैं लेकिन लिप्स और टंग को यूज करके बोलना है, ठीक है। आवाज नहीं निकल रही है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट बहुत अच्छे से हो जाता है। और सुबह शाम अगर हम इसको रिपीट करेंगे 5 मिनट और मोर बोला है उन्होंने, डू दिस फॉर 5 मिनट्स और मोर, ठीक है। मॉर्निंग में एंड इवनिंग में हमको करना है, या दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, एंड वी विल सी दैट हमारी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा स्टेप इन्होंने मतलब जॉन वॉन गेथे का बताया है, जो हम सबको पता है कि बहुत बड़े वो जर्मन ऑथर थे। तो उनका बताया है कि वो कभी भी अपने उनको जिंदगी में कुछ अचीव करना होता था ना, तो वो सोने के पहले क्या करते थे कि वो इमेजिन करते थे लोग उनको आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना एक्सपीरियंस भी एपिलॉग में बताया, जो शुरू शुरू में प्रीफेस लिखा था उसमें बताया था
कि वो हमेशा सोचते थे कि उनकी ये दिली तमन्ना थी कि वो बहुत ज्यादा लोगों को रीच आउट करना चाहते थे ताकि उनकी जिंदगी बदले, है ना। और पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत लोगों को अपनी कंट्री के अलावा भी बताना चाहते थे। तो वो क्योंकि मतलब ब्रिटिश थे तो यूके में रहते थे, अमेरिका में नहीं थे, तो वो इमेजिन करते थे कि वो अमेरिकन क्राउड के सामने बैठे हुए, मतलब के सामने स्टेज पे खड़े हैं और बहुत सारे लोग, मतलब उनका जो ऑडिटोरियम है वो चकाचक भरा हुआ है। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू इमेजिन बिकॉज दिस वाज द बेस्ट वे। इमेजिनेशन से आप मतलब बहुत जल्दी चीजें वो हो जाती हैं फिजिकल रियलिटी। तो वो इमेजिन करते थे कि सारे लोग, मतलब पूरा ऑडिटोरियम, बड़ा सा ऑडिटोरियम है हजारों लोगों का, और सारा की सारा ऑडिटोरियम, रेड कलर का ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है। और फिर जैसे ही उनका लेक्चर खत्म होता था तो लोग आके उनको बताते थे, मतलब बहुत ब्रिमिंग फेसेस, you know, that's what he said, that I would visualize that brimming happy faces would come to me in person and tell me about their victories, that how they have changed their lives, you know, and I was congratulating them. तो ये इमेजिनेशन करते थे। इस तरह से इनका काम इतना फैला कि इनके रेडियो पे प्रोग्राम्स आने लगे। एक प्रोग्राम उनका उस टाइम सुबह आता था, एक शाम को आता था। और फिर इसके अलावा उस टाइम तो इतनी फ्लाइट्स नहीं होती थी ना, ये 30s 40s 50s की बात है, तो फ्लाइट्स नहीं होती थी, तो वो शिप से जाते थे, है ना। मतलब वो जो भी क्रूज शिप जो भी बोलते हैं, मतलब बाय सी ही वुड ट्रैवल टू द अदर कंट्रीज। मतलब यूके, अगर यूके से वो अमेरिका जा रहे हैं तो वो बाय सी जाते थे। तो इस तरह से वो सब विजुलाइज करके रखते थे। तो इस तरह गेथे भी यही करते थे कि जब भी, मतलब ही वॉज अ वेरी बिग ऑथर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पोइट्रीज लिखी हैं, तो वो हमेशा यही करते थे कि उनको कोई और, उनके जो लव्ड वंस, या उनको पता होता था ना, उनके मैनेजर, उनका जो स्टाफ होता था, वो सब आके उनको कहते थे कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो उनका हैंडशेक फील करते थे अपने हाथों में। ठीक है, सो ये कर करके वो सोते थे। तो इसी तरह से थर्ड स्टेप डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अल्कोहलिज्म के लिए लिखा है। पहला तो लिखा है कि आप बैठो, स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाओ, है ना, आप मतलब लंबी गहरी सांसें लो, छोड़ो, तो उससे आपका माइंड अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में सबकॉन्शियस माइंड का ढक्कन खुल जाता है, और हमको उसी में तो डालनी है ये इन्फॉर्मेशन। और फिर उसमें ये वाली लाइन रिपीट करते रहो 5-10 जितने मिनट के लिए, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड आर माइन नाउ एंड आई गिव थैंक्स। ठीक है, ये बोलते रहो। उसके बाद और फिर ये सुबह शाम ये बोलना है लगातार 5 से 10 मिनट के लिए। और रात को सोने के पहले इमेजिन दैट आपको जिस पर्सन की आवाज पता है वो पर्सन आपको बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट यू आर टोटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट नाउ, है ना। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, दैट जो भी इमेजिन अ फ्रेंड और अ लव्ड वन, या जो आपको बोल रहा है कि क्योंकि आपने पूरी तरह से अल्कोहल छोड़ दिया है, या जो भी एडिक्शन था वो छोड़ दिया है। So that is how, and then आप उस पर्सन की जो आपको congratulations बोल रहा है, आप उसकी स्माइल देख रहे हो, उसकी अपने कानों में उसकी आवाज सुन रहे हो, और आप मेंटली उसका हाथ भी टच कर रहे हो क्योंकि congratulations उसने हैंडशेक करके किया है ना। सो ये वाला ये है, इसमें लिखा हुआ hear this over and over again until you get the subconscious reaction which satisfies। मतलब बार बार दिमाग में congratulations जैसे आवाज गूंजती है ना, उस तरह से रिपीटेड इफेक्ट जो होता है, जैसे सीरियल्स में होता है ना। सो रिपीटेड इफेक्ट के साथ इसको सुनना है ताकि आपका सबकॉन्शियस बिलीव कर ले, और उसके बाद फिर आपको नींद आ जाएगी। सो नाउ दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू स्टे विद यू, और सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरे जोर शोर से हेल्प करेगा आपका अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, टोबैको, चूइंग, जो भी छोड़ना है उस चीज में। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो यस, वील गो टू keep on keeping on. Keep on keeping on. When fear knocks at the door of your mind, or when worry, anxiety, and doubt cross your mind, behold your vision, your goal. Think of the infinite power within your subconscious mind, which you can generate by your thinking and imagining. And this will give you confidence, power, and courage. Keep on preserve until the day breaks and the shadows flee away. बिकॉज देखो डॉक्टर जोसेफ मर्फी को ये मालूम है कि बहुत आसान नहीं होता है अल्कोहल छोड़ना, तो उन्होंने बोला है कि बहुत बार अल्कोहल आपको बुलाएगी। कोई भी चीज आप बहुत गंदी है, अगर आपके लिए, आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे ना, वो बार बार वो दलदल होता है, तो दलदल में कैसे आप फंसते जाते हो ना, तो बार बार अल्कोहल आपको बुलाएगी, बार बार ऐसे अर्जेस होंगे। ठीक है, तो उसमें ये इसीलिए डॉक्टर मर्फी ने कभी भी किसी भी एफर्मेशन के बाद ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि परसिवियर करो, यू नो,
वो इसीलिए लिखा हुआ है सिर्फ इस वाली इशू में, दैट इसमें आपको मन पक्का बना लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार बीच में वरी, एंजाइटी, डाउट, इस तरह से चीजें आएंगी, लेकिन अपना गोल सामने मत, मतलब उसको मत हटाना, और परसिवियर विद दिस प्रैक्टिस, बिकॉज ये जो एफर्मेशन है सुबह शाम करना 5 to 10 minutes, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, सो वी कांट ब्रेक फ्रॉम इट। और लाइक हमेशा सोचो कि मेरे अंदर एक पावर है एंड आई कैन अचीव एनीथिंग। आई थिंक ये हम सब के लिए भी है। हम सब बीच बीच में वरी, फियर, कभी हमारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, कभी हमारे पैसे के चैलेंजेस होते हैं, कभी हमारे किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कहीं और जनरल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के चैलेंज आ जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी बोर्डम लाइफ में बहुत ज्यादा आ जाती है, एक जैसी जिंदगी जीते 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 वही रूटीन। सो इस तरह से लाइक कभी भी ऐसे मंडेन टाइप का अजीब सी फीलिंग होती है या नेगेटिव होती है, तो इसमें ऑलवेज रिमेम्बर दैट आपको चाहिए क्या इस वक्त। ठीक है, बोर्डम हो रहा है, आपको ट्रैवल करना है, आपको अपनी सिटी से बाहर जाना है, आपको किसी बहुत अच्छे व्यू जहाँ पे हो उस जगह पे जाना है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दो, जस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन that to the infinite power of the subconscious mind and to the creative intelligence, that I would really love to go and spend, for a short holiday somewhere, and then bas de ke apna surrender. Okay, so ask, believe and receive. तो ask कर लिया, अब believe करो that parallel universe में co-creation का process शुरू हो गया है, जैसे अब्राहम हिग्स बोलते हैं ना अपने ask and it is given and law of attraction दोनों किताबों में, that आपके मन में जो सबकॉन्शियस मन में कुछ आता है ना, उसका पैरेलल यूनिवर्स में वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है। ठीक है, अब आपको को क्रिएटर्स मिलेंगे, सो को क्रिएशन का प्रोसेस होगा। को क्रिएशन का प्रोसेस मींस इवेंट, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसी आएंगी, ऐसी बात होगी, फिर ऐसा होगा, फिर आप देखोगे कि वो फाइनली एक्चुअलाइज हो गया। सो इसमें थोड़ा सा सरेंडरिंग की जरूरत है ना, या तो आप अपना दिमाग लगा लो या यूनिवर्स को लगाने दो, ब्रह्मांड की शक्तियां, अगर आपको लगता है आपकी शक्ति ज्यादा है ना, ब्रह्मांड की शक्तियों पे छोड़ दो उसको। ठीक है, आस्क, बिलीव दैट इट इज ऑलरेडी डन, और बहुत जल्दी आप जितना ज्यादा आपका बिलीव होगा, द पावर ऑफ बिलीव करके ही एक किताब है, द पावर ऑफ बिलीव। सो आस्क, बिलीव नहीं हो पाता ना हमको, हमारा दिमाग चलने लग जाता है हर जगह पे, अपने दिमाग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, जब किताब लिखनी होगी अभी फ्यूचर में, उसके लिए बचा के रख लो। ठीक है, ये हम सरेंडर कर देते हैं, ऐसी चीजें हमको सरेंडर करनी होती है, तो सरेंडर कर दो एंड यू विल सी दैट यू विल रिसीव इट वेरी वेरी सून। सो दिस इज हाउ अपने आप इंस्पिरेशन आता है ना। जैसे मैं अपने आप को ये बोलना शुरू किया था दैट आई एम फिट, फॉर्म एंड मस्कुलर बिकॉज आई लाइक अ वेरी टोन बॉडी, एंड उसके बाद अपने आप ही अंदर से इम्पल्स आया कि ना दैट दीप्ति तुम्हारे पास 5 kg के डंबल्स तो है नहीं, तो तुम अभी भी 1-2 kg के साथ ही करती हो, तो अगर तुमको फिट, फॉर्म, मस्कुलर होना है तो तुमको 5 kg चाहिए होगा। मैंने उसी दिन, मैं किसी और सिटी में थी, ट्रैवल पे थी, एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, और एकदम से ये इम्पल्स आया दैट यू नीड टू बाय दैट देन, सो आई गॉट देम, एंड वो अगले दिन ही डिलीवर हो गए थे घर पे। तो इस तरह करके अपने आप कैसे होता है, क्या होता है, नहीं तो मैं कभी नहीं 5 kg के साथ करती, मतलब बहुत भारी लगते थे मुझको पहले, अब मुझे बहुत आसान लगते हैं क्योंकि मसल्स को अभी याद हो गई, उनकी मेमोरी में चला गया है कि अच्छा ये रोज ही उठाती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो दैट्स व्हाई इट सेज हियर दैट बीच बीच में बहुत हमारी विजन में, हमारी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब हमको वरी होगी, एंजाइटी होगी, हमको डाउट आएगा, हमारी नींद नहीं खुलेगी सुबह, ये बुक्स को स्टडी करने के लिए। बहुत ऐसे कहते हैं ना, अंदर से आता है या बाहर से रुकावटें आएंगी, अंदर से आएंगी, बट डू नॉट वरी, okay, come back on track, doesn't matter, everybody falls down, it's okay to fall down, it's okay to cry, it's okay to lose, okay, but come back on track and start once again, reboot करो अपने आप को। reboot करने का मतलब यही होता है ना, कि डाउन डिप हो गए, but reboot yourself and start crawling, walking, running, whatever speed you're comfortable with at that point of time, but move forward, that's more important। ठीक है, फिर हम ये खत्म ही कर लेते हैं, आई थिंक ये चैप्टर ही खत्म हो रहा है, रिव्यू थॉट पावर। हाँ जी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा हमारा ओवरशूट होगा टाइम बिकॉज मैजिक डस्ट भी बहुत लंबा था, बट सिंस इट्स अ संडे हम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हाँ जी श्याम जी। Review your thought power. The solution lies within the problem. The answer is in every question. Infinite intelligence responds to you as you call upon it with faith and confidence. Number 2, habit is the function of your subconscious mind. There is no greater evidence of the marvelous power of your subconscious than the force and sway habit
holds in your life. You are a creature of habit. 3. You form habit patterns in your subconscious mind by repeating a thought and act over and over again until it establishes tracks in the subconscious mind and becomes automatic, such as swimming, dancing, typing, walking, driving your car, etc. You have freedom to choose. You can choose a good habit or a bad habit. Prayer is a good habit. Whatever mental picture backed by faith you behold in your conscious mind, and your subconscious mind will bring to pass. Number 6. The only obstacle to your success and achievement is your own thought or mental image. Number 7. When your attention wanders, bring it back to the contemplation of your good or goal. Make a habit of this. This is called disciplining the mind. Number 8. Your conscious mind is the camera, and your subconscious mind is the sensitive plate on which you register or impress the picture. Number 9. The only jinx that follows anyone is a fear thought repeated over and over in the mind. Break the jinx by knowing that whatever you start, you will bring to a conclusion in divine order. Picture the happy ending and sustain it with confidence. Number 10. To form a new habit, you must be convinced that it is desirable. When your desire to give up the bad habit is greater than your desire to continue, you are 51% healed already. Number 11. The statements of others cannot hurt you except through your own thoughts and mental participation. Identify yourself with your aim, which is peace, harmony, and joy. You are the only thinker in your universe. Number 12. Excessive drinking is an unconscious desire to escape. The cause of alcoholism is negative and destructive thinking. The cure is to think of freedom, sobriety, and perfection, and to feel the thrill of accomplishment. Number 13. Many people remain alcoholics because they refuse to admit it. Number 14. The law of your subconscious mind, which held you in bondage and inhibited your freedom of action, will give you freedom and happiness. It depends on how you use it. Number 15. Your imagination took you to the bottle. Let it take you freedom. Let it take you to freedom by imagining you're free. Number 16. The real cause of alcoholism is negative and destructive thinking. As a man thinketh in his heart, subconscious mind, so is he. Number 17. When fear knocks at the door of your mind, let faith in God and all things good open the door. Yeah, thank you so much, Shyamji. Thank you. Thank you. Thank you so much. So एंड में हमने यही है कि एक चीज हमको जो टिप्स है उस चैप्टर से वो याद रखने हैं दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ रिकॉर्डिंग मशीन. जो आप कॉन्शियस माइंड में सोच रहे हो, देख रहे हो, जो आपके रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और आप बहुत जल्दी उसको अपनी जिंदगी में हकीकत के रूप में देखोगे. ठीक है, ये वाली एक चीज है. इसका क्या मतलब है? सिर्फ वो चीजें देखो, सोचो और सुनो जो आपको अपनी जिंदगी में देखनी है. ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे लेकिन उनको कैंसिल कर दो, उनको बोल दो कैंसिल कैंसिल, और उसकी जगह इमीडिएटली आप जो का डिजायर थॉट है उसको आप लेके आओ. है ना? करंट रियलिटी को मत बार बार सोचो, बिकॉज इफ यू डोंट वांट टू सी योर करंट रियलिटी, सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे हेल्थ चैलेंज है या फिर फाइनेंशियल चैलेंज है या रिलेशनशिप चैलेंज है, उसको मत सोचो. डिजायर्ड रियलिटी के बारे में सोचो, उसको उसकी इमेज होल्ड करो. इसमें ये लिखा हुआ है अपने कॉन्शियस माइंड में भी वही इमेज लेके आओ
So it is repetition will give you impressions in the subconscious mind. ये एक और चीज थी जो I think number 7 या 8 पे थी, repetition. कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, repetition, affirmation का repetition करो, ठीक है? So जो भी आपको करना है, मतलब जिस भी तरह से आपको रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि चाहिए, आप बार बार अपने आप को बोलिए कि मेरे जिंदगी में बहुत रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि आ रही है ना? आप बार बार अपने आप को बोलिए इन वट एवर वे यू वांट टू डू इट इन हिंदी, यू वांट टू डू इट इन इंग्लिश के एफर्मेशन तो हम करते ही हैं, दैट आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय ब्यूटी, अबंडेंस एंड लग्जरीज. Okay, my health is getting better and better by day and night. Not even from day to day. हम 24 घंटे भी नहीं दे रहे हैं अपनी हेल्थ को ठीक होने के लिए. By day and night. ठीक है, दिन है और अच्छी हो गई, रात को सोए और ज्यादा अच्छी हो गई, अगले दिन सुबह उठे फिर और अच्छी है, फिर रात को सोए फिर और अच्छी हो गई. सो इसलिए जितना मिनिमम बात कर सकते हो करंट रियलिटी के बारे में उतना कम बात करो, और इम्प्रेशंस रेपिटेशन से बनाओ. जो सोच रहे हो देखो समझ लो आपकी वो रिकॉर्ड हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वो बहुत जल्दी रिप्ले होगा, क्योंकि जो मूवी डाउनलोड करोगे वही जिंदगी में दिखेगी. तो अपनी मूवी चेंज कर दो, है ना? क्या डाउनलोड कर रहे हो आप उसको अपने हाथ में रखो. डाउनलोड द मूवी, मेक योर ओन लाइफ मूवी. इसीलिए मैं कहती हूँ ना, डेक्लेरेशन करो यूनिवर्स को दैट दिस इज हाउ आई वांट टू सी द लाइफ, this is how I want to see myself after 1 year, after 6 months. I want to see myself buying a huge beautiful house. I want to see myself receiving awards from all over the world. I see myself as a very rich person who has freedom to choose now financially. I see myself being very, very educated. I see myself speaking very fluent English. I see myself traveling the world. I see, like whatever it is that you want to see, I want to take my parents on a holiday overseas. Or whatever it is that you want to, like आपको कहीं पे भी कोई कंट्री का गोल है, कुछ और है, उसके बारे में सोचो, है ना? मुंगेरी लाल के हसीन सपने. So you can do that because that's what works, because subconscious mind is going to absorb your thoughts. वो स्पॉन्ज होता है, तो उस स्पॉन्ज में आप किस तरह के कौन से रंग का पानी डाल रहे हो, उस तरह का एब्सॉर्ब होगा. So this is how life goes about, है ना? So yeah, tomorrow we'll start a fresh new chapter, how to use your subconscious mind to remove fear. हम सबको fear है, हमको relationships के जाने का fear है, हमको ये fear है कि कहीं हम जिंदगी भर अकेले तो नहीं रह जाएंगे, हमको ये fear है कि ठीक है आज तो पैसा आ रहा है ना? Sometimes we are holding on to things, we are holding on to our relationships, we are holding on to money, we are holding on to those moments क्योंकि हमको fear है कि कल नहीं आएगा. अरे नहीं, भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं. I mean like खूब आएगा और आता ही जाएगा. अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी हमको, तो वो हम कल से सीखेंगे कैसे करना है, कैसे दिमाग में होल्ड ऑन टू का जो हमारा वो है ना, होल्ड क्लिंगिंग ऑन टू थिंग्स, तो वो जाएगा. फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ गोइंग इन द लिफ्ट, fear of driving alone, fear of traveling alone, fear of whatever, like कि आज जॉब है कल रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है आज बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है कल का क्या होगा, fear of losing health, fear of growing old. ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमारे दिमाग में एक किसी तरह का डर रहता है. बहुत मजेदार चैप्टर है ये वाला, आप बहुत इंजॉय करोगे. ठीक है, सो या थैंक यू सो मच. दैट इज ऑल फ्रॉम माय डेस्क टुडे. Anything that you want to share or add? So Shyam ji, गाना सोच के रखिए. We will not let you go without a musical. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Yeah. And I So, have sharing also. Oh wow! Please start. Yeah, sure. It's about the weight loss, ma'am. And yeah, after my 12th class, ma'am, this is the first time my weight is below 70 kgs. That's because of water and food therapy. अच्छा, अरे वाह, कॉन्स्टेंटली मैम सब कुछ ट्राई कर लिया था, इवन प्रियंका ने ट्राई कर लिया था, लेकिन वो 72-3 रहता था, मतलब डाउन नहीं आता था. नाउ 76 हो गया था मेरा. अब मैंने क्या किया कि वाटर और फूड थेरेपी कंटिन्यूस करनी स्टार्ट की. एंड एवरी टाइम मुझे कुछ और याद हो या ना हो, मैं ये जरूर कहता हूँ कि थैंक यू, माय वेट इज 68 kgs. तो अच्छा, आपने नंबर बताया था, नंबर बताया था, तो अच्छा नंबर था मेरे माइंड में. Then I started doing it every time I have any food or water or tea. Yesterday my weight came down to 69. Congratulations. Within 2.5 months, I lost 6 kgs.
ओके, फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग वेट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना? And ma'am, exercise Actually, to I didn't avoid- want him to look so slim. I didn't want him to look so good. तो इसलिए मैं चाहती नहीं थी कि इनका I didn't want him to look so good. healthy competition is always there. You can't compromise. So sweet, प्रियंका, तुम तो खुद ही मिसेस इंडिया हो. नहीं, इसने बहुत ट्राई किया. एक्चुअली क्या है कि हम लोग मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, तो काफी इस चीज का फर्क पड़ता है मैम. Wow, congratulations, and it was a Ma'am. good learning for us, and may your body weight be just perfect, जितना भी प्रियंका चाहे उतना. बट मैम और खा भी सब कुछ रहा हूँ, ये नहीं है कि, हाँ. बट वाटर एंड फूड थेरेपी से रियली क्रिएट्स. Yes. Yeah, it does give a difference. That's what. यही मैं सबको समझाने की कोशिश करती हूँ कि वरी से कुछ नहीं होता, है ना? जैसे कहते हैं ना, 3 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बहुत खराब कर देती हैं, हरी, वरी एंड करी. तो हरी हर चीज में जल्दीबाजी मतलब स्ट्रेस, वरी मतलब हर चीज में भय, चिंता, एंजाइटी, और करी मतलब तेल तला हुआ करी. तो हरी, वरी एंड करी से हम दूर ही रहेंगे. हमारी जिंदगी का ट्रैक ही अलग है. सो या, थैंक यू फॉर शेयरिंग. एंड वी ऑल्सो हैव रेनू वांटिंग टू शेयर विद अस. रेनू, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Oh, good morning. Good morning. Lee. Morning. Can you please switch on your camera? I don't want to show it. And मैं अल्कोहल से किसी और के लिए बहुत अगर छुड़ानी हो तो मैं ये जो आपने सोबरिटी एंड पीस बोला, तो मैं दूसरे के लिए क्या कब करूं कि मुझे इसकी छुड़ानी है, तो आप अल्कोहल किसी के और लिए. की छुड़ानी है अल्कोहल? हाँ जी. अच्छा, सो सेम थिंग आप उनको बोलोगे दैट सोब्राइटी एंड पीस रेन सुप्रीम इन हिज माइंड, जो वो वाला था, यू नो, Slowly, एंड first- थैंक यू यूनिवर्स फॉर इट. हाँ, वही वाली एफर्मेशन उस पर्सन का नाम लेके, ठीक है? लेकिन उसका असर इतना मतलब होगा जरूर, बिकॉज ये एक मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड हम कर सकते हैं. तो जो मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है ना, जो डे नंबर 24 पे आएगी, आपको वो उनके लिए करना होगा, ठीक है? और आप मोर थिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट. ठीक है, छूट गई है वो, लेकिन आपको चाहिए क्या? कि वो मेंटली एंड फिजिकली बहुत हेल्दी रहे, इमोशनली यू नो बहुत स्ट्रांग हो, है ना, और बहुत ग्रो करे, बहुत प्रोस्पेरिटी आए उनकी जिंदगी में. ये सारी चीजें चाहिए ना, तो आप इनके बारे में भी लिखो. जब मैजिक वॉन्ड करते हैं तो वो बहुत लंबा होता है, और वो 1 मिनट के लिए आपको सोचना होता है कि दूसरे पर्सन इस तरह से कर रहा है, और उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कंट्रोल है दैट यू आर एक्चुअली कांग्रेचुलेटिंग कि कांग्रेट्स, यू स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल. इट्स नॉट अ पर्सन हु इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल, उसका कम करने से कुछ नहीं होगा, उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है? सो स्टॉप इज द वर्ड. कम करके कुछ नहीं होगा, वो कम बार बार पुल करेगा, वो फिर से यू नो कोई इधर उधर देखेगा और वो गटक अंदर से अंदर चली जाएगी. तो उसको स्टॉप ही करना पड़ेगा. सो आप मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस करो अगर आपको करना है, और जो सेम एफर्मेशन है आप उस पर्सन का नाम लेके कर सकते हैं. मतलब सोबरिटी एंड पीस ऑफ माइंड, मतलब यही उसमें हाँ, सेम विद दैट पर्सन्स नेम. ओके. माई माइंड की जगह नाम लेके, सपोज उसका नाम राहुल है, राहुल्स माइंड, है ना, दैट वे. और जैसे कल मैं फ्री थी तो मैं सही सोची कि फ्री ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक और जो भी होता है, देन फ्री थी तो मैं कुछ लिखना, मतलब उस टाइम में मैं कुछ वो मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, क्या करूं, फ्री टाइम पूरा डेली उसमें बेसिस अरे पे. मैं यही बताती हूँ ना, आप इस ब्रह्मांड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ठीक है? और डेक्लेरेशन लिखो यूनिवर्स को, डेक्लेरेशन दैट यू नो दैट जो भी आपका गोल है जिंदगी में, आप उसको डिवाइड कर लो अलग अलग पैराग्राफ्स में, 4 पैराग्राफ. एक आप मनी का कर लो, एक आप रिलेशनशिप का करो, एक आप हेल्थ का करो, और आप अपने जॉब एंड सक्सेस का करो, ठीक है? और डिक्लेयर करो दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट, एंड थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी, लीडिंग मी, डायरेक्टिंग मी, शोइंग मी द वे, यू नो, टू रीच देयर. सो व्हाटएवर जो आपके दिल में है आप लिखो. आप फोकस व्हील टेक्निक कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने एक बार बताया था, दैट बीच में आप लिखो जो भी आपका गोल है. आपका गोल है सपोज रिसीविंग 2 लाख रुपीज एवरी मंथ, है ना, जैसे आपको, तो आपने लिखा बीच में रिसीविंग 2 लाख रुपीज एवरी मंथ. तो फोकस व्हील बोलते हैं उसको. ये अब्राहम हिक्स की आस्क एंड इट इज गिवन, और उनके सारे कंटेंट्स में ये होता है.
सो बीच में ये लिखा, अब उसके आसपास आप वो बनाओ, जैसे स्पोक्स होते हैं ना, अलग अलग क्लाउड्स, उसमें से एरो निकल रहे हैं उस सेंटर में से। अब आप क्या क्या करोगे उस पैसे से, 2 लाख रुपए से आपको क्या फीलिंग होगी, और आप किस तरह से उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आप ये लिख सकते हो फीलिंग वेरी फाइनेंशियली स्टेबल। फिर उसके बाद लिखोगे दैट यू नो लाइक जो भी आपको कार खरीदनी है और उसका आपको कार लोन भी देना होगा, 2 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है आपको 10-15 हजार का कार लोन देना पड़े, अगर आपका वो वाला भी है ना। सो उसमें लिखो दैट पेइंग 15,000 फॉर माई ब्यूटिफुल कार लोन, फॉर माई ड्रीम कार लोन। फिर उसका नेक्स्ट आप लिखो दैट यू नो लाइक डूइंग दिस सो एंड सो कोर्स, अगर आपको कोई कोर्स करने का मन था या कुछ। फिर उसके बाद किस तरह की लाइफ आप अपने पेरेंट्स की जिंदगी में बहुत मतलब यू वांट टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू देम। सो आप ये लिख सकते हो दैट गिविंग सो एंड सो से 15,000 rupees to my mother every month, you know. Then you can you know write whatever that to have a great quality of life, repairing of my bathrooms and whatever, you know, like whatever you have in your mind that you want to, why do you want। हमेशा जब why strong होता है ना हमारा, तो बहुत जल्दी कोई चीज हमारे पास आती है। तो अपने हाउ पे तो भूल जाओ काम करना, वो तो ब्रह्मांड का काम होता है, ठीक है। वाई पे वर्क करते रहो, वाई व्हाट मोर विल यू डू, अच्छा ऐसा लगेगा, बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी, वाओ कितना अच्छा लगेगा कि मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए सेविंग्स में रखे हुए हैं, यू नो मैं मेडिकल इंश्योरेंस ये वाला ले सकती हूँ। what else, I can travel with ease and I can fly first class and business class, जब मेरे पास इतना पैसा आता जाएगा। और ठीक है 1-2 लाख आएंगे, उसमें से 1 लाख में सेव करूंगी, 1 लाख से अपना घर चलाऊंगी। सो यू नो दैट इज हाउ। सो अपने वाई और उसके बाद आप क्या क्या करोगे, तो फोकस व्हील में वही होता है, बीच में आपका गोल आ जाता है और उसके साथ में आपके सारे व्हाट फीलिंग यू हैव, कैसा लग रहा है, क्या क्या कर रहे हो, कैसे इंजॉय कर रहे हो, वो सारी चीजें आती है। तो उस तरह से जैसे करो। मेरी बहुएं नहीं आई तो उनका भी विजुअलाइज कर सकती हूँ कि मैं हाँ कि हाँ ऑफ उनका कोर्स, भी हाँ क्या लिखो, विजुलाइज enjoy- करो पहले से ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आपका गोल है उसके साथ में आप लिखो। सो जितना लिखना पढ़ना, अपने जिस तरह की डिजायर्ड लाइफ है उस तरह से हमको सोचना। सो सारी टेक्निक्स होती हैं, फील करना, लिखना, पढ़ना, सुनना, एवरीथिंग शुड बी देयर, ऑल दीज, ठीक है। थैंक यू बहुत अच्छा। थैंक यू। यस मीना, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा, सिर्फ फोटो से तो ओके चलेगा नहीं जो आपकी दिख रही है। ओके हाँ जी। या so yesterday I had a friendship day party in my academy. I planned for small kids from 2 years to 12 years, and my motive was for 20 plus kids, but due to my practice and gratitude I had 43 enrollments. Wow, it this is went amazing. awesome. Awesome. Yeah. So Wow. and it was Ina who said me कि Mia, don't write numbers, just say कि how you prosper and you have a divine surplus and you will get the successful party. And I go, okay, let me try this thing then. And then I got 43 registration and I said, now I can't take, please. And till the time I got the calls कि ma'am please हमें registration के लिए आना है, and we said okay, it's open, you just send it fast. Wow, this is amazing. And there was a time when you were struggling और पूरा खाली रखा पड़ा होता था। Yeah, Oh, this yeah. is amazing. The practices I did was the work like magic. Second, I did 108, thank you for the workplace. Daily, I do that. And the How third many is the days did you do affirmation. it? Regularly. Now it's regularly that I do. Thank you. आपने 108 times. 108 blessings आपने जो वर्क प्लेस Yeah, की लिखी है, yeah, तो yeah. कितने कितने महीने, कितने दिन? It may be more than 2 months now, ma'am. अच्छा, लगातार आप लिखते आ रहे हो? Yes, So ma'am. what Yes. exactly were you writing? No, I just wrote. I think इस group में Thank किसी you ने for share the किया था. school. Yeah, thank you for VFund. Thank you for अच्छा, VFund. Thank you thank for you for VFund. VFun. VFun आपके स्कूल का नाम है। हाँ। Yeah, so 108 times I was writing that. And the third is affirmation, that thank you, I prosper every day and night, and I have a divine surplus every day. Amazing. Yeah. Congratulations and may you be blessed. अब क्या बोले आपको कि और बच्चे आए, अब आपके पास जगह भी है। नहीं, this is for आपकी the party. जिंदगी में Definitely बरकत all आती जाए आती जाए आती जाए और आपके सारे सपने पूरे हो जाए, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि आपकी जिंदगी में आपकी बहुत सफलता है।
Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, and Ina, to you too for all the support. They are beautiful twin sisters. So Ina, to you too for all the support. Thank you, ma'am. Congratulations. This is amazing. It was actually wow. Like I've seen your struggle, Meena, from there till now, and I love it the way you have grown. And मजा आ गया. But seriously, it's because of you only, ma'am. क्योंकि हमें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आता था. बट आपने सिखाया कि इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. ग्रैटिट्यूड से भी हम लोग जी सकते हैं अपनी जिंदगी को. एंड दैट वी आर डूइंग. थैंक यू. Yes. So बार बार अपने आप को बोलो, life is easy and effortless. This is amazing. Thank you so much. Thank you and bye bye. Have a beautiful, magical, relaxed Sunday full of fun and joy. बहुत hand raised है. और भी हैं? दीपा गरोड़िया बोलना चाहती थी कुछ शायद. दीपा शायद वो गरोड़िया. हटा दिया उन्होंने अपना अच्छा, हाथ. प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए. मेरे स्क्रीन पे सारे नहीं दिख रहे हैं. नहीं, मैं पहले लेकिन फिर मैं गैलरी व्यू कर लेती हूँ अभी. हाँ, उनका हाथ अब नहीं है. हो सकता है कि वो चली गई हो या कल अच्छा शेयर कर रही हो. अच्छा, कोई बात नहीं. Can हम I याद और- कल याद रख लेंगे और फिर हम क्या Ma'am, बोल रहे हैं आप प्रिया? अभी तो हमें श्याम जी का गाना भी सुनना है. हाँ प्रिया बोलो. अच्छा, श्याम जी का गाना सुन लो पहले. नहीं नहीं, आप आप बोलिए. नहीं, वो हमारा चेरी ऑन द केक मेरा होगा. सुन लेना. नहीं चलो वो ठीक है. चेरी ऑन द केक होगा. उसके बाद हम एंड कर लेंगे. वी वांट टू स्टे विद इट. मुझे भी कोई गाना सजेस्ट करे ना. आई विल सिंग फॉर ऑल ऑफ यू. You'll sing, yeah. So maybe next Sunday, we would love to hear from you, Priya, because Sundays we can still have time. मजा आएगा. We are looking forward. उस दिन भी आपने बहुत अच्छा गाना गाया था. Suggest नहीं करेंगे, आप खुद सोचिए. जी जी. हाँ जी श्याम जी, हम सब अपने आप को म्यूट कर रहे हैं. श्योर आपको शेयर सुन रहे हैं. करूँ क्या अभी? एक छोटी सी शेयरिंग भी थी. हाँ हाँ बोलो प्रिया. एक्चुअली कल ना मेरे को काफी सारे मतलब कल परसों मेरी काफी लोगों से मीटिंग हुई थी और उसमें से एक थे कि जो एक्रिलिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, जैसे मंदिर बनता है आजकल एक्रिलिक प्रोडक्ट, उसमें थोड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और फिर वो डिजाइन होता है ओम का डिजाइन या स्वास्तिक का डिजाइन या कुछ डिफरेंट. तो वो मशीन के जो ऑनर थे, हिज नेम वाज सलूजा, और उन्होंने उस मशीन से 3.5 लाख की मशीन है, ये सब चीजें बनती है उससे. और जो मैंने बताया वैसा वाला टेम्पल के लिए भी बनता है और डिफरेंट प्लेसेस के मल्टीपल पर्पस वो मशीन. विक्ट्री बताओ ना अपनी प्रिया, वो सुननी है हमें. प्रिया की जिंदगी में क्या चेंज हुआ है वो हमको वो सुनना है. और ये स्टिकर्स जो है ये मतलब कि ये दूसरी मशीन से बनता है, वो 5.5 लाख के. तो मैंने अपने ब्रदर को भी इंट्रोड्यूस किया वहां पर. और वहीं पर मेरे को ना कल एक पर्सन मिले, उनको सोराइसिस था. तो आई जस्ट गाइडेड हिम फॉर द सोराइसिस और वो मुझसे दोबारा से मिलने आएंगे. और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना जस्ट मुझे ना अपना वो लिख के दो कि आपको किस किस प्रोजेक्ट, MSME के प्रोजेक्ट्स वो हैंडल करते हैं, NFC के प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं. बोलते कि सारा कुछ मुझे ना कल लिख के दे देना और जरूर जल्दी से जल्दी मुझे लिख के दो. 1 पेजर बनाओ या 2 पेजर बनाओ या 3 पेजर बनाओ, जितने भी आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हो या फिर किसी का भी हो. तो यू जस्ट लेट मी नो, देन आई विल लुक आफ्टर इट. और आपको कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए. तो बोले नहीं बोलो कितना पैसा चाहिए. तो मैंने कहा चलो ठीक है, मिलके बात करेंगे. और उन्होंने जो मैंने मशीन के बारे में सलूजा जी का बताया था ना, उन्होंने मुझे ये बना के दिया प्रिया तनेजा, और एक तरफ लिखा हुआ है जानवी की चेन. और ऐसे ही मतलब मुझे मल्टीपल गिफ्ट्स मिले हैं. और एक मिस्टर कुक की एड भी करी है परसों. वो वहाँ के जो ऑनर थे वो इंडिया से बाहर गए हुए थे, तो उनके PA ने बोला कि मैं अपने ऑनर को दिखाना चाहता हूँ, तो आप हमारे इसके लिए करिए. उनका नाम वगैरह तो खैर छोड़िए, मतलब मिस्टर कुक जो यूटेंसिल्स आते हैं, ऐसे ही 2nd नंबर पे या पता नहीं कॉमन ही नंबर पे चल रहा है मिस्टर कुक करके. और उसका पूरा नाम अभी वो बच्चे वगैरह पेन ले गए हैं, यूनाइटेड समथिंग कुछ है. तो उन्होंने बोला है कि मैं आपको ना स्पेशल पेन गिफ्ट
करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपका नाम लिखवा के दूंगा और लगा मतलब काफी कुछ उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन में बोला, मैंने भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट करा, लिख के भी दिया काफी कुछ, जैसे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आप हमें सिखाते हो हमेशा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ग्रुप में कि मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ हमेशा डेली सीखने को मिलता है। लाइक वाटर थेरेपी मैं नहीं छोड़ रही हूँ, वाटर थेरेपी हमेशा मैं करती हूँ, कुछ और करूँ ना करूँ, वाटर थेरेपी और ब्लेसिंग जो स्पेसिफाई है करो। प्रिया वो प्रिया एक imagine- सेकेंड, आपके एक्सपीरियंस से ना बहुत लोगों से मिल रहे हो, बहुत सारे लोग आपको ऑफर्स दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको पैसा ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे वो हो रहे हैं, बट वाटर थेरेपी, एफर्मेशंस और आपकी जो प्रेयर्स हैं, एक चीज होती है कि आप उनको बहुत स्पेसिफिक रखो। ठीक है, लोग तो बहुत मिलेंगे आपको, आज भी मिलेंगे 10 लोग और कल भी लेंगे, है ना, बट आपकी एज प्रिया तनेजा बी वेरी स्पेसिफिक दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई वांट टू रिसीव एवरी मंथ, दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस। इट्स नॉट दैट कोई बोल रहा है पेन बुक दे देगा, वो अभी आपने अपना उसका किया हुआ है ना, आई थिंक कोई और बिजनेस अभी शुरू किया था आपने पीछे, आप उस पे फोकस करो अभी, and definitely you don't have to say yes to 10 types of business that people are coming to approach you with, and they're telling you that you do this, you do this, you do this, you do this, है ना। Be very very clear that I want to take this current business जिसका आपने शुरू किया है, जो आप I think pearls या कुछ ज्वेलरी दिखा रहे थे उस दिन, है ना, तो वो वाले बिजनेस में उस पे पूरा फोकस लगा दो। ठीक है, अभी लोग बोल भी रहे या फिर क्योंकि वो आपका इकिगाई है ना, कि दैट यू वांटेड टू डू इट, या आपका जो एजुकेशन है, ब्यूटी एंड वेलनेस इज हाँ हाँ, आप उसमें अपना जान लगा दो। अगर आपको वो करना है तो उसमें आप अपनी जान लगा दो। उसमें आप देखो स्पेसिफिकली दैट हाउ कैन आई रीच आउट एंड हैव मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, हाउ कैन आई रीच आउट एंड इंक्रीज माय मार्केटिंग, यूनिवर्स कैन यू लाइक वाटर थेरेपी आप उसके लिए करो। लोग तो मिलते रहेंगे, है ना, मुझे भी तो 50 लोग एक दिन में मिलते हैं ऑन एन एवरेज, लाइक किसी ना किसी कोई ना कोई, बट एज प्रिया be very very clear about this is what I want to do and this is where I want to reach, right? And then you focus all your attention and your guidance and everything for that. Of course ये protective, कई लोग पॉजिटिव वे में भी आता है, कई बार आपकी टेस्टिंग भी होती है। यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छी से ही चीज देंगे, कई बार आपका एग्जामिनेशन के लिए भी देंगे, कैरेट लटका देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेट लटकाना? लालच आएगा, कई बार, या so universe will hang carrots many times in front of you just to make you decide that let's see that is the greed the reason कि इसकी life का purpose genuinely ये है ना। So it works like that and wish you a lot of success again, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सफलता कि आप चरम सीमा पे पहुंचे। So now why I'm repeating this, because I want this word to be there in your subconscious mind. So now we'll listen to Shyamji's song. It's already like 7:25, 7:30. Yes, ma'am, yes. 7:30. So yeah, Sure. Shyamji. Yeah, my throat is not that great today, but I'll which sing. is okay. आपको सागर बहुत पसंद है तो मैं सागर पे एक सॉन्ग सुना देता हूँ। हाँ हाँ, बहुत पसंद है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे जागे नजारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं, हो पल भर में दिल की दुनिया कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे। That's it. बहुत खूब श्याम जी, बहुत बढ़िया। Beautiful. Amazing. And after a long time. by the way. कौन सागर के किनारे जाने वाला है अगले 1 महीने में? और मैम कल रात को मेरी आवाज जो है ना वो निकल नहीं रही थी, आज आपकी ब्लेसिंग से देखो मैंने गा भी दिया। हाँ, हमने खोल दी, हम कुछ भी कर लेते हैं। एक्चुअली मतलब एकदम सो ब्यूटीफुल, सो मच विद फीलिंग, आप इतने दिल से गाते हैं, बहुत हाँ, प्यारा। एक्चुअली
I mean, you have some magic to your voice. Amazing. Thank you, ma'am. It's your इसलिए magic. आपका नाम आता है तो मुझे बस गाना याद आता है, and then you let music be the food of love, you know, as we say. So it's Thank you, ma'am. beautiful. Thank you so much, and thank you. Bye bye. Thank you. Have a great Bye-bye. day. Thank you. Guys, enjoyable, fun Thank you so Sunday. Same Thank time. you so much, ma'am. Tomorrow.